यस बेटा. You can lift the camera to the left side. ओके. No, sir, to the left side. सुनो बेटा, तुम्हें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि तुम कैमरे को ना हॉरिजॉन्टल कर लो. कैमरे को हॉरिजॉन्टल कर लो. नाउ इट इज ओके. कैमरे को हॉरिजॉन्टल कर लो तो पूरा आ जाएगा. ओके चलो हम इधर ट्राई करेंगे, इधर ना लिखे. ओके. द नेक्स्ट वेलोसिटी v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर बेटा. तो व्हेन 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 इंटू 5/18. तो 18 4 जा 72, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. सो you have u equal to 10 meter per second and v equal to 20 meter per second. Beta, u is equal to 10 meter per second and v equal to 20 meter per second. So acceleration is v minus u upon t. What is v? That is 20. And what is u? That is 10. And time is, what is time? Time is given 10 second. So it is 10 by 10, that is 1 meter per second square. So what will be the possible answer? D. Beta, this work should be done very fast. Understood? It's not a very simple work. ये बहुत धीमे धीमे वर्क नहीं होना चाहिए. It's a very fast work. Okay? Now the second question. The question is question number 42. According to this question, a bus moving along a straight line, a bus moving along a straight line wait for seconds beta, wait for seconds. Saransh, are you there? Saransh, are you there? ठीक है बेटा, इसका वीडियो लगातार बन रहा है. ठीक है, तो जो आपका मिस हुआ है बेटा वो वीडियो में देख लेना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. द क्वेश्चन सेज a bus moving along a straight line at 20 meter per second. At 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square. 4 meter per second square. After 2 seconds, its speed will be, there are 4 options are there. First one 8, 12, 16, 28. 8, 12, 16, 28. Which option is correct? Now see beta, a bus moving along a straight line at 20 meter per second. It means initial velocity is given 20 meter per second, undergoes an acceleration of 4 meter per second square. Acceleration is 4 meter per second square. After 2 seconds, that is t equal to 2 seconds,
what is its speed? Mani, you have to calculate v beta. No, write a formula. V equal to u plus at. Why we apply this formula? Because this is the first equation of motion beta. In this, initial velocity given, acceleration given, and also time is given. So use this formula, v equal to u plus at. Write this. In place of u, write 20 plus a. In place of a beta, 4, or in place of time, write 2. So 20 plus 8, 28 meter per second. So what will be the option? Last one. Understood? Understood everyone? Okay. Now the third question. That is question number 43. Question says, the slope of speed time graph, the slope of speed time graph gives. First one, distance traveled. Second option, velocity. Third option, acceleration. And fourth option, displacement. Fourth option, displacement. These are the options बेटा. Slope of speed time graph. तो पहले बेटा हम तीनों ग्राफ के स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो ग्राफ है, ये है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ. ये ग्राफ किसका है बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ. जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के अगर अलोंग है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन बेटा टाइम एक्सिस के अलोंग अगर है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पर है. तो ये लाइन किसको इंडिकेट करेगा? दिस इज द बॉडी एट रेस्ट. वंस अगेन आई रिपीट, व्हेन द बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है वो अगर इस तरह का मिल रहा है ना, और वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब ये रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है. अगर हम इसी का सेकंड ग्राफ बनाते हैं, दिस इज द पोजीशन एंड दिस वन इज टाइम, एंड वी मेक लाइक दिस ग्राफ स्ट्रेट लाइन बेटा. इन दैट केस अगर हम इसका स्लोप ड्रॉ करें, दिस इज द स्लोप. स्लोप का मतलब क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाती है. तो अगर हम इसका स्लोप ड्रॉ करें लाइक दिस, तो दिस स्लोप इज डेल्टा एक्स एंड दिस वन इज डेल्टा टी. तो दिस स्लोप गिव्स बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, बिकॉज चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वंस अगेन आई रिपीट, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप किसको बताएगा बेटा? वेलोसिटी को बताएगा. अंडरस्टूड? और ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है, तो दिस स्ट्रेट लाइन गिव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बट अगर मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए लाइक दिस, तो इसका जो स्लोप होगा, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसका स्लोप वेलोसिटी तो देगा बट नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अंडरस्टूड बेटा? दिस इज द स्लोप फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड टाइम ग्राफ. If we draw speed time graph, here is velocity or speed and here is time. In any condition, सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है बेटा, जब
वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होते हैं व्हेन द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। और उसी कंडीशन में बेटा वेलोसिटी एंड स्पीड वो भी इक्वल होगा। वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी इक्वल व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। In this question, if we draw this line, इसको और इसको ध्यान से देखो, this is the position time graph. So this straight line, when line is parallel to x-axis, it gives rest. But in velocity time graph, when the straight line is parallel to the time axis or x-axis, it gives uniform velocity. It gives beta uniform. It gives uniform velocity. Next बेटा, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये रेस्ट को बता रहा है। आते हैं नेक्स्ट केस बेटा। मान लो अगर हम इस तरह का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ये किसको इंडिकेट करेगा? जस्ट ड्रॉ द स्लोप। दिस वन इज एंगल, दिस वन इज डेल्टा वी एंड दिस इज डेल्टा टी। तो व्हाट इज स्लोप बेटा? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। स्लोप इज इक्वल टू delta v upon delta t, and change of velocity upon change of time is equal to acceleration. So slope will be, slope gives acceleration. अब आप मुझे ये बता दीजिए बेटा कि ये ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। यस, दिस इज एक्सेलरेशन, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो आई होप बेटा ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही ग्राफ हमारा ऐसे बन जाए, कुछ इस तरह का बेटा, तो ये किसको बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम। ये किसको बताएगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज बेटा अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, वेलोसिटी एंड टाइम, ये ग्राफ किसको बताएगा? दिस ग्राफ इंडिकेट्स रिटार्डेशन। यस, दिस इंडिकेट्स, इसका अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये बताएगा रिटार्डेशन को। दिस विल बी रिटार्डेशन। और चूंकि स्ट्रेट पाथ में, इसलिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना हो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतनी बातें बेटा। एवरीवन, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? चलो अब बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया केस। मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया, फिर वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गई बेटा। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया, फिर वो ऊपर से नीचे आ गई। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ। लुक एट दिस। एक बात ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करते हैं तो इट हैज सम वेलोसिटी, लेकिन जैसे जैसे बेटा वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, एट दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी विल बी 0। एंड अगेन जब ये नीचे रिटर्न होती है तो उसकी वेलोसिटी, ये जो फाइनल, ये इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, व्हेन इट रिटर्न्स बैक दिस विल बिकम इनिशियल एंड दिस बिकम्स फाइनल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितना टाइम बेटा वो ऊपर जाने में ले रहा है, सेम टाइम वो नीचे आने में लेगा।
Suppose if it takes 2 seconds to go higher, then again in 2 seconds it returns back. ग्राफ बनाते हैं. Velocity time graph. बेटा, initially its velocity decreases. So here is initial velocity. और मान लो ये टाइम है, ठीक है, और इट इज द नेक्स्ट टाइम. स्टार्टिंग में जैसे ही ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके यहाँ पर रेस्ट पे आ जाएगी. मींस इट्स वेलोसिटी इज 0. तो मान लो यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड ले रहा है, तो जस्ट टेक 0 to 5 सेकंड एंड अगेन 5 to 10 सेकंड रिटर्न. तो इसका धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, देखो डिक्रीज हो रही है. लुक एट दिस, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. एंड एट 10 सेकंड ये पहले यहां से यहां तक गई, फिर ये रिटर्न हो रही है. व्हेन इट रिटर्न्स बैक, then again it takes a time. What time it takes? Again 5 seconds. In 5 seconds it takes its velocity highest. मतलब जब ये यहां से यहां गई बेटा और जब रिटर्न हो रही है तो वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगी जिस वेलोसिटी से गई थी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा. तो दिस इज द केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. I hope this graph is clear to all. Next बेटा, ये एक्स्ट्रा मैंने बताया है बेटा, इसका कोई तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ. एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ. अगर तुम्हारे पास कोई स्पीड टाइम ग्राफ है, सपोज दिस वन इज v एंड दिस वन इज टाइम. अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है एंड इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये जो एरिया है ये किसको इंडिकेट करेगा बेटा, दिस एरिया इंडिकेट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड. एंड हाउ कैन यू फाइंड, by taking the area. मान लो तुम यहां से यहां तक का पहले एरिया निकाल लो और फिर यहां से यहां तक का, या कोई जरूरी नहीं है बेटा. ध्यान से देखो, 1/2 into base into height. This is the base. Suppose this one is am and this is the height. Suppose this one is c into this height n into c. ये सी पॉइंट है बेटा. समझ गए सब लोग? इस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं और यही एरिया किसको बता देगा, डिस्टेंस को बता देगा. एनी डाउट? अंडरस्टूड बेटा? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द यूनिट ऑफ. तो इसका एरिया जो क्वांटिटी मेजर करेगा उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो बेटा उसकी एसआई यूनिट होगी मीटर. अंडरस्टूड? इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. बेटा थोड़ा सा मैं आप लोग से सॉरी बोलेंगे, हमारे यहाँ एक्चुअली कोरोना पेशेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट है. इस वजह से हम लोगों को सिर्फ 2 ही रूम के अंदर कंजेस्ट होना पड़ रहा है. मेरी बात समझ में आई? हम जिस क्लास में ले रहे हैं, जिस रूम में ले रहे हैं वो, और इसकी जस्ट दूसरी रूम है उसमें, और उसमें मेरी छोटी बिटिया है. तो इस वजह से बेटा आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है. तो बैकग्राउंड से ये जो है बेटा कंट्रोल हम कर नहीं पा रहे. छोटी बिटिया है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा. अंडरस्टूड बेटा? क्योंकि और कोई मेरे पास चारा नहीं है. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन सेज
displacement of an object is proportional to square of time, to square of time. Okay, ये given है बेटा. Then the object is moving with. Object is moving with. अब इसमें जो जो ऑप्शन दिया है वो नोट करो. क्या क्या ऑप्शन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, next one is increasing acceleration, and fourth option is decreasing acceleration. मानिए ये रिटार्डेशन है बेटा, decreasing acceleration. These are the options. बेटा सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझ लो एवरीवन, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. सब लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए बेटा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम. जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कह रहा है कि उसके टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जस्ट वेट फॉर सेकेंड्स बेटा. Question says S proportional to t square. Displacement of an object is proportional to the square of the time of an object. तो आपसे कह रहा है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये कब आएगा और कैसे आएगा बेटा, ये हमें देखना है. राइट दिस फॉर्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर हम इस टर्म को लेते हैं बेटा, इस वाले टर्म को, तो S इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. इन दिस पोर्शन वी सी S is coming and time square is coming, but half and a, इन दोनों के बारे में क्या कहोगे? ये दोनों क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है. तो अगर हम इस कांस्टेंट को यहां से हटाते हैं तो इसकी जगह पर हम s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर लिखेंगे. एंड व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन you have to apply a constant and that constant is e. So what will be the possible answer? Displacement of an object is proportional to square of time object is moving with. What's the answer beta? Uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration और decreasing acceleration. ये जो a है ये constant है. जब हम constant कहते हैं बेटा तो इसका मतलब at every point a is constant, a is fixed. So what will be the answer? Uniform velocity. No. Uniform velocity. अगर uniform velocity है तो देखो क्या हुआ. Uniform velocity. Here velocity is 20 meter per second. 20 meter per second. 20 meter per second. It means here acceleration is 0. Here acceleration is 0. बट यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा. इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 40, यहाँ 60 बेटा, यहाँ पे 80. टाइम इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. डिफरेंस इज 20, डिफरेंस इज 20, डिफरेंस इज 20 बिकॉज a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. v और u का जो डिफरेंस है उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे यू गेट a. तो a इज कांस्टेंट एवरीवेयर.
So when this condition occurs, then the body is moving with uniform acceleration. Is it okay? Is it okay to all? Everyone बेटा, सभी को समझ में आ गया? जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. यस सर, नॉट मैम. चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख के बेटा फिर आगे रोक देते हैं. Here is a graph given. Here is distance and here is time. And there are four portions, four graphs are there. B, A, D, C. आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द मोशन ऑफ दिस कार, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है बेटा? फर्स्ट वन इज ए इज फास्टर देन डी. सेकेंड ऑप्शन बी इज स्लोवेस्ट. B is slowest. Third option D is faster. D is faster than C. And fourth option C is slowest. चलो अब इसको सॉल्व करने से पहले बेटा हम अलग से क्वेश्चन तुम्हें समझाने जा रहे हैं. This is distance and this one is time and this is the slope. This is the line बेटा. हमने क्या किया, इसका स्लोप ड्रॉ किया. This one is delta s and this is delta t. Now slope is equal to, slope मतलब एंगल होता है बेटा. स्लोप का मतलब एंगल. ठीक है, ये एंगल है बेटा. सपोज दिस एंगल इज थीटा. Slope is equal to delta s upon delta t, perpendicular upon base, and delta s upon delta t, displacement upon time, is equal to position, velocity. तो ये किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा. आप देखो बेटा, स्लोप और वेलोसिटी डायरेक्टली हैं. इट मीन्स स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इसका ये मतलब निकला मोर स्लोप मोर वेलोसिटी, लेस स्लोप लेस वेलोसिटी. नाउ इफ यू हैव two graphs, this one is time and here is displacement or position. Now you have two graphs बेटा. इस तरह से मैंने टू ग्राफ बना दिए, ये ए और बी. आपको बताना है ए और बी में से कौन सा फास्टर है या कौन सा स्लोअर है. लुक एट दिस. दिस वन इज थीटा 1 एंड दिस वन इज थीटा 2. मुझे अगर इसका स्लोप ड्रॉ करना हो तो आपको पता है ना, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एंड दिस विल गिव वेलोसिटी. यहां से स्लोप वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब हम नोटिस करते हैं दोनों में से कौन सा एंगल ग्रेटर है बेटा? वी सी थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. सो यू कैन से स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए. तो इस हिसाब से जिसका स्लोप अधिक होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी. सो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए. नाउ इन दोनों में से कौन सी कार फास्टर है बेटा? बी या ए?
विच वन इज फास्टर? वी सी, जिसकी वेलोसिटी अधिक होगी दैट इज मोर फास्टर। तो बी की वेलोसिटी अधिक है, सो बी इज फास्टर देन ए। नाउ सी दिस क्वेश्चन बेटा, दिस वन इज θ1, θ2, θ3 and θ4। बेटा दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोनों में से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप ड्रॉ करते हैं तो दिस विल बी स्लोप इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एंड दिस विल गिव वेलोसिटी। स्लोप जिसका अधिक होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी। हम देख रहे हैं कि जो θ4 है वो ग्रेटर है θ3 से, एंड θ3 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ4 मतलब स्लोप ऑफ जो c है वो ग्रेटर है स्लोप ऑफ b से, एंड स्लोप ऑफ d बेटा जो ग्रेटर है दिस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a एंड इट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b। तो जिसका स्लोप अधिक होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी बेटा। सो वेलोसिटी ऑफ c फ्रॉम हियर, वेलोसिटी ऑफ c is greater than velocity of d, greater than velocity of a, greater than velocity of b। तो which one is faster? अब इसमें से तुम्हें बताना है which one is correct statement। a is faster than d, a is faster than d, it is correct। No, sir. b is slowest, yes b is slowest, b slowest है। d is faster than c, d is faster than c, गलत है बेटा। and c is slowest, no b is slowest। तो मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। I hope this is clear to all, this is clear to all बेटा। ठीक है, Yes, sir. मीटिंग हम ओवर कर रहे हैं बट मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो की कंटिन्यू है। अभी हम शाम तक वीडियो अपलोड कर देंगे बेटा, तो आप सब लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. थैंक यू बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question says 47th question, a car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second if the velocity time graph for this car is horizontal line parallel to time axis, then what is the velocity of car at the end of 25 seconds? This is the question beta।